بچوں امید کرتے ہیں کہ آپ اچھے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 10ویں کلاس میں شامل درخشاں کا چیپٹر نمبر 12، جس کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد، اور ان کا ناول ہے فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ آج ہم اس چیپٹر کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس سبق میں کتنا مزہ آتا ہے۔ بہت مزیدار سبق ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو ہے پڑھا تھا کہ ناول کسے کہتے ہیں، ناول کیا ہوتا ہے، تو یہ اسی کڑی کا سبق ہے۔ ڈپٹی نذیر صاحب کا یہ چیپٹر اور یہ سبق لیسن فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ تو یہ فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو یہ ہے کیا؟ تو یہ ناول ہے، اور اس سبق کو جو ہمارے کتاب میں شامل ہے، اس سبق کو لیا گیا ہے ایک ناول سے۔ اس ناول کا نام ہے توبۃ النصوح۔ اسی ناول سے ایک حصہ جو ہے اٹھا کر ہمارے درسی کتاب درخشاں میں شامل کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو یہ کیا ہے، ناول ہے، اور یہ ماخوذ ہے، یعنی کسی دوسرے ناول سے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے، اور وہ جو ہے ہمارے کتاب میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ فہمیدہ ہے اور کہہ رہے اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، تو بات سمجھ میں آ رہی کہ فہمیدہ ماں ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجلی بیٹی، یعنی یہ جو ہے حمیدہ یہ فہمیدہ کی مجلی بیٹی ہے، اور یہ دونوں کی آپسی گفتگو ہوتی ہے اس سبق میں۔ تو آج ہم اسے ہی جو ہے سمجھیں گے اور اس ناول کو دیکھیں گے کہ یہ ہمیں پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نذیر صاحب یہ ایک بہت بڑا نام ہے، اور بہت بڑا نام کیا ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے پہلے ناول نگار ہے۔ ان کا شمار جو ہے اولین ناول نگاروں میں ہوتا ہے، یعنی یہ سب سے پہلے ایسے ادیب ہیں جنہوں نے ناول لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے ہی جو ہے ناول نگاری میں پہلا نام جو ہے کمایا ہے، اور یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب اولین ناول نگار ہے۔ اگر آپ کے ایگزام میں پوچھیں کہ اولین ناول نگار یعنی سب سے پہلا ناول نگار کون ہے، تو یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہے۔ بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے تعلق سے، اور پھر اس کے بعد میں یہ فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو جو سبق ہے، جو ناول ہے، جو اخذ کیا گیا ہے توبۃ النصوح سے، اس میں ہم جو ہے پڑھیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ نذیر احمد صاحب کی پیدائش کب ہوتی ہے۔ تو نذیر احمد صاحب کی پیدائش ہوتی ہے، تاریخ ہے 6 دسمبر 1836۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب 6 دسمبر 1836 کو پیدا ہوتے ہیں، یہ تاریخ ہے اور یہ سن ہے، اور یہ ہے جگہ، یعنی کہاں پیدا ہوئے۔ آپ سے پوچھ لے کہ جائے پیدائش کیا ہے، مقام پیدائش کیا ہے، یعنی آپ کہاں پیدا ہوئے تھے، تو وہ جو ہے بستی ہے کوریٹر، اور ضلع ہے بجنور، اور آپ یو پی سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا صوبہ جو ہے یو پی ہے، ضلع ہے بجنور، بستی ہے کوریٹر۔ آپ جو ہے یہاں 6 دسمبر 1836 کو پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو ہے نذیر احمد صاحب کی جو ہے والد کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ ان کے والد کا نام کیا تھا، تو یہاں کے والد کا نام کیا تھا، تو سعادت علی تھا۔ ان کے والد کا نام سعادت علی تھا، والد کا نام ہوا سعادت علی۔ اب جو ہے دیکھتے ہیں، یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ان کا نسبی سلسلہ کس بزرگ سے ملتا تھا۔ جو حسب نسب ہوتا ہے خاندان، تو یہ کس بزرگ سے جو ہے ان کا نسب جو ہے ملتا ہے، ان کے خاندان کا سلسلہ، تو وہ ہے نسبی سلسلہ جو ہے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا عبدالغفور اعظم پوری، مشہور نام ہے۔ تو یہ بڑے بزرگ تھے، تو ان کے جو ہے خاندان سے، ان کے سلسلے سے ان کا نسبی سلسلہ ملتا ہے، یعنی نذیر احمد صاحب کا نسبی سلسلہ عبدالغفور اعظم پوری جو بزرگ تھے ان سے جو ہے ملتا ہے۔ آگے ہے کہ ان کے نانا کا نام کیا ہے، نذیر احمد کے نانا کا نام کیا ہے، تو نذیر احمد صاحب کے نانا جان کا نام قاضی غلام علی شاہ ہے۔ قاضی غلام علی شاہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے نانا لگتے تھے۔ اب یہ جو ہے
एग्ज़ाम में पूछ सकता है, आ सकता है क्वेश्चन कि आपकी जो है तालीम जो हुई है तो वो कहाँ हुई है, और कौन सी तालीम, इब्तदाई तालीम, बेसिक तालीम जो आपकी जो है हुई है तो वो कहाँ हुई है। तो इब्तदाई तालीम जो है आपकी जो है गांव के मकतब में होती है। और फिर जो है इस गांव के मकतब में कौन साहब पढ़ाते थे, कौन थे आपके उस्ताद इब्तदाई तालीम के, तो ये मौलवी नसरुल्लाह साहब हैं। और इनके साथ साथ आप अपने वालिद से भी जो है अरबी और फ़ारसी की किताबें जो है पढ़े थे। तो आपकी इब्तदाई तालीम गांव के मकतब में होती है। और फिर जो है मकतब में उस उस्ताद का नाम क्या था, तो मौलवी नसरुल्लाह साहब थे। और वालिद से भी जो है इन्होंने कस्बे हुनर किया है, कस्बे इल्म किया है, अपने वालिद से भी पढ़े थे। अब जो है देखते हैं कि ये तो इब्तदाई तालीम होगी कि गांव के मकतब में पढ़े थे और मुस्लिम मौलवी नसरुल्लाह साहब से, अपने वालिद से। अब आला तालीम जो है कहाँ होती है, तो आला तालीम के लिए आप दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली जाते हैं तो इनका दाखिला जो है दिल्ली कॉलेज में होता है। और दिल्ली कॉलेज में जो है किसके वसीले से, किसके रास्ते से, किसके तवस्सुत से होता है, तो एक साहब थे प्रिंसिपल काजी साहब, इन्हीं के तवस्सुत से दिल्ली कॉलेज में इनका दाखिला होता है। और कई साल जो है ये यहाँ पे रह के तालीम हासिल करते हैं। फिर जो है दिल्ली में ही जो है आप रहते हैं। और जब आला तालीम हासिल कर लेते हैं, तो जब आला तालीम आदमी हासिल कर लेता है तो कहीं मुलाजमत भी करता है। तो जो है मुलाजमत इनकी जो है लगती है कहाँ, पंजाब में। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है टेम्पल साहब। अब उसको टेम्पल साहब भी कह सकते हैं। तो टेम्पल साहब में इनकी जो है मुलाजमत लगती है। और कौन सी मुलाजमत, तो ये मुअल्लिमी, यानी आप जो है वहाँ पे ही स्कूल था तो वहाँ पे जो है आप मुअल्लिमी की जो है मुलाजमत करते थे, मुअल्लिमी के फ़राइज़ अंजाम देते थे। मुअल्लिमी क्या है, तो मुअल्लिम जो टीचर होता है, जो मास्टर होता है, जो उस्ताद होता है, पढ़ने पढ़ाने वाला जो होता है, उसे मुअल्लिम कहते हैं। आज स्कूल में जो है कहा जाता है कि हमारे मास्टर साहब, सर साहब, तो उर्दू में जो है उसे मुअल्लिम कहा जाता है, मुअल्लिम साहब। तो ये मुअल्लिमी की जो है मुलाजमत कहाँ करते थे, पंजाब, सूबा पंजाब में टेम्पल साहब एक जगह का नाम है, वहाँ पे मुअल्लिमी करा जो है फ़राइज़ अंजाम देते थे। और कितनी तनख्वाह थी आपकी, सैलरी कितनी थी नज़ीर अहमद साहब की, तो सैलरी थी 40 रुपये माहवार, यानी माहवार मीन्स महीना। तनख्वाह जो है आपके महीने की 40 रुपये थी फ़कत। और फिर जो है आप यहाँ से जो है इस मुलाजमत को छोड़ देते हैं और फिर कानपुर का रुख आप करते हैं। तो कानपुर में आपको जो है मदारिस का डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। तो कानपुर में आप डिप्टी इंस्पेक्टर की मुलाजमत करते हैं। और आपको मालूम है कि नज़ीर अहमद में जो डिप्टी लगा हुआ है, यही मुलाजमत की वजह से आपको डिप्टी नज़ीर अहमद लिखा जाने लगा, इसी नाम से आप मशहूर हो गए। तो यही कानपुर की जो है सरजमीन पे गए थे तो ये मुलाजमत किए थे, इनकी मुलाजमत यही लगी, डिप्टी इंस्पेक्टर, यानी स्कूल के जो है डिप्टी इंस्पेक्टर जो है हर ज़िले में हुआ करते थे। इनकी जो है वहाँ यही सर्विस लगी, यही नौकरी लगी, यही मुलाजमत ही आपकी है। फिर जो है जब ये नौकरी कर रहे थे कानपुर में, तो उसी वक्त जो है गदर का जो है मामला पेश आया था 1857 का, जिसमें जो है काफ़ी परेशानी हुई। तो फिर आप जो है ये नौकरी भी छोड़ देते हैं और फिर जो है आप दिल्ली में आ जाते हैं। और दिल्ली में आकर जो है मुकम्मल तरीके से आप मुस्तकिल क़याम पज़ीर हो जाते हैं। और फिर जो है आपका तसनीफ़ व तालीम का काम शुरू होता है। बहरहाल ये हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या तसनीफ़ की है, कौन कौन सी किताब लिखी है। अब देखते हैं कि शादी जो है आपकी होती है। तो शादी जो है होती है आपकी, एक साहब थे अब्दुल खालिक साहब, उन्हीं की पोती से जो है आपकी शादी होती है। तो शादी अब्दुल खालिक साहब की पोती थी, उन्हीं से आपकी शादी होती है। अब जो है देखते हैं कि नज़ीर अहमद साहब के नाविल, यानी नज़ीर अहमद साहब ने कौन कौन सी जो है नाविलें लिखी हैं और कैसे लिखी हैं, क्या लिखी हैं, तो वो सब जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है मीरातुल उरूस लिखते हैं। ये जो है नाविल है मीरातुल उरूस, और ये आपने कब लिखा था, 1869 में लिखा था। मीरातुल उरूस जो है ये 1869 में लिखा गया। और इस मीरातुल उरूस जो नाविल है, इसका जो है किरदार, दो किरदार, अकबरी और असगरी, इसका जो है बहुत अच्छा किरदार जो है इसमें ये
है अकबरी और असगरी नाम का, समझे। तो ये सबसे पहले जो है आपने 1869 में लिखा था मिरातुल उरूस, और ये जो है काफ़ी मशहूर जो है नावल है, जिसका किरदार है अकबरी और असगरी। ये पूछ ले कि अकबरी और असगरी किस नावल का किरदार है, तो मिरातुल उरूस जवाब होगा। और फिर ये है, उसके बाद में जो है आपने नबातुन नाश के नाम से आपने जो है एक नावल लिखी, और वो कब लिखी, 1872 में लिखी थी। फिर उसके बाद में जो है जब ये नबातुन नाश लिखी 1872 में, तो इसका भी किरदार एक है जिसका नाम है असगरी खानम। ये भी काफ़ी मशहूर किरदार है। और मान लीजिए पूछ ले आपसे कि असगरी खानम किस जो है नावल का किरदार है, तो इस जो है नावल का नाम रखा जाएगा नबातुन नाश, यानी नबातुन नाश का किरदार असगरी खानम है। फिर उसके बाद में आपने जो है तौबतुन नसूह नाम से जो है नावल लिखा है, और ये 1877 ईस्वी में लिखा है। और ये 1877 ईस्वी जो तौबतुन नसूह जो है आपने लिखा है, तो ये नसूह जो है नावल है, इसी तौबतुन नसूह से ये जो है हमारा सबक आया है, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, इसी जो है नावल से आगाज़ किया गया है। और इस तौबतुन नसूह के जो असल किरदार है, जो मरकज़ी किरदार है, ये ख़ुद जो है नज़ीर अहमद साहब है, उसमें जो है इनके किरदार का नाम नसूह है। और इनकी जो है उसमें जो है बेटी है आलिया है, ये हमीदा है और सालिहा है। उसमें जो है और भी किरदार हैं, जैसे सलीम है, इनका बेटा कलीम है। तो ये जो तौबतुन नसूह लिखा गया है, और ये तौबतुन नसूह जो नावल है, ये जो है दीनी तालीम के ऊपर आधारित है, यानी दीनी तालीम के ऊपर उस पर फोकस दिया गया है, इसलिए आगे क्वेश्चन भी आएगा। बहरहाल ये 1877 में ये तौबतुन नसूह लिखते हैं, और जो है इसका किरदार ये नसूह है, यानी जो मरकज़ी किरदार है, जो असल किरदार है वो नसूह है। और यही नसूह साहब जो है, जो इस नावल में है कि ये ख्वाब देखते हैं, और वो ख्वाब में देखते हैं, क्या देखते हैं, तो हश्र का नक्शा देखते हैं। मालूम है आप जो है मैदान महशर जो है कायम होगा, हश्र जब कायम होगा तो वो अपने अपने अमाल के एतबार से सब जो है सब परेशान में है। हदीसों में लिखा हुआ है कि अपने अपने अमाल के बिना पर जिसके जैसे अमाल होंगे, जितनी जो है ज़्यादा अमाल अच्छे होंगे वो उतना ही कम पसीने में सराबर होगा, जितना ही जो है बुराइयां होंगी वो उतना ही जो है पसीने से, यहाँ तक कि बताया गया कि घुटने तक, कोई ठुकने तक, कोई जो है कमर तक, कोई सीने तक, कोई जो है कान तक, कोई पूरा सर पसीने में सराबोर होगा, पसीने से नहाया होगा। सूरज जो है सावा नेज़े के ऊपर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सब सोच रहे होंगे और ये परेशान होंगे कि कैसे जो है हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारा फैसला हो जाए। और सब लोग दर बदर भटकेंगे और कोई जो है पुरसाने हाल नहीं होगा। ये नक्शा जो है देखता है, और वो नक्शा की बात है ये तो दीनी बात है। और फिर जो है उस जो है मैदान महशर में जो है शफ़ीए रोज़गार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग जाएंगे, फिर जो है सरकार शफाअत फरमाएंगे। फिर उसके बाद ये बहुत बड़ी कहानी है। बहरहाल ये नसूह साहब जो है ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब में जो है हश्र का नक्शा देखते हैं। फिर जो है यहीं से इनकी जो है उस कहानी में जो तौबतुन नसूह में बताया गया कि उनकी जो है ज़िंदगी के स्टाइल में बदलता है ये नक्शा, हश्र का नक्शा देखने के बाद। बहरहाल ये बात यहाँ तक की है कि आपसे पूछ ले कि तौबतुन नसूह का असल किरदार कौन है, तो नसूह है। और फिर जो है पूछेगा कि नसूह आलम ख्वाब में क्या देखते हैं, तो हश्र का नक्शा देखते हैं, ये जो है जवाब है। फिर उसके बाद में आपने एक जो है नावल लिखा था फसाना मुब्तला, ये कब लिखा था, 1885 में लिखा था। और फिर उसके बाद में आपने एक और जो है नावल लिखा जिसका नाम इब्नुल वक्त है। और फिर जो है एक और नावल जो है आपने लिखा था रुया सादिका, जो 1884 में आपने लिखा था। तो ये जो है मिरातुल उरूस, और जो है नबातुन नाश, और फिर जो है तौबतुन नसूह, और फिर जो है फसाना मुब्तला, और फिर इब्नुल वक्त और रुया सादिका, ये इनके नावल हैं जो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने लिखे हैं। फिर उसके बाद में नज़ीर अहमद साहब का इंतकाल पूछ रहा है कि पूछ लें कि नज़ीर अहमद साहब का इंतकाल कब हुआ था, किस उम्र में हुआ था। तो नज़ीर अहमद साहब का इंतकाल 74 साल की उम्र में हुआ था। जब आप 74 साल के थे, 74 ईयर्स के थे, तो आपका इंतकाल हुआ था। और वो तारीख क्या थी, तो 28 दिसंबर की तारीख थी।
28 दिसंबर की तारीख थी। सन क्या था? 1910। यानी ये पूछ ले कि नज़ीर अहमद का इंतकाल किस उम्र में हुआ था? तो 74 साल की उम्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर को हुआ था। और सन क्या था? तो 1910 को। और फिर जो है क्यों हुआ था, किस वजह से, कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से आपका इंतकाल हो गया? तो वो फालिज की बीमारी थी। फालिज को, जिसे आप आजकल ज़बान में बोलते हैं पैरालिसिस, तो ये फालिज की मर्ज से जो है आपका इंतकाल हुआ था 1910 को, 28 दिसंबर को। फिर ये है कि हमने ये जो चैप्टर देखा कि फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, तो ये फ़हमीदा और मजली बेटी की हमीदा की गुफ्तगू, ये जो है जो नाविल है इसका मौजू क्या है, यानी इस पूरे नाविल में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है? तो इसका मौजू है दीनी तालीम, यानी दीनी तालीम के ऊपर ये नाविल आधारित है, दीनी तालीम के ऊपर फोकस दिया गया है। तो अगर पूछ ले कि फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू का मौजू क्या है, तो मौजू है दीनी तालीम। और इसका नुक्ते नज़र क्या है? तो इस्लाही है, यानी किस नुक्ते नज़र, किस रीज़न, किस जो है बिना पर लिखा गया था, क्या मकसद था लिखने का? तो नुक्ते नज़र है, इसका मकसद है इस्लाही, यानी इस्लाह के लिए, सुधार के लिए जो है लिखा गया है, ताकि जो है मुआशरे में जो है इस नाविल को पढ़कर जो है बच्चों के अंदर इस्लाह और सुधार पैदा हो। तो मौजू है दीनी तालीम। अगर ये पूछ ले कि इस जो है नाविल का जो है मौजू क्या था, तो दीनी तालीम, और नुक्ते नज़र क्या है, तो इस्लाही है। अब जो है देखते हैं कि फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू ये क्या है। यानी ये बज़ाते खुद जो है नाविल है, या फिर ये इसे अखज़ किसी नाविल से लिया गया है, तो ये माखूज़ है। यानी ये फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू ये माखूज़ है, यानी ये तौबतुन नसूह जो नाविल है, इस नाविल से इसको लिया गया है, इसलिए इसे माखूज़ कहते हैं। और जो है किससे माखूज़ किया गया, तो ये बता दिया कि नाविल तौबतुन नसूह से ही जो है इस चैप्टर को लिया गया है।